Good morning, students. Let's continue chapter 1. In previous video, we have just seen about associative property for the rational number. Now it's time to learn distributive property. So we will see distributive property for rational numbers. Okay, so we will check it for rational number and how it works, and we will see some examples based on that. Okay, so let's continue our part 6. Okay, so that is distributive property. We will see two condition: distributive over multiplication over addition, and subtraction, right? So distribution, multiplication, write down multiplication over, sorry, it's problem with the pen, multiplication over addition. The first one is multiplication over addition, and the second one we will see multiplication over subtraction. So kindly concentrate. Learn first multiplication over addition. Now distribute करना है किसको? multiplication को over addition. Now समझिए ये बात आप. Multiplication, so a multiplication, there will be three integers, a multiplication b plus c. This is multiplication, right? Look at here, this is multiplication over what? So in the bracket there is addition, so this is nothing but multiplication over addition. Is it okay? समझिए आप. मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन करना है तो समझिए आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट? किसको? मल्टीप्लिकेशन को ओवर व्हाट? एडिशन, ओवर एडिशन. सो डिस्ट्रीब्यूटिंग ओ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट? सो दिस इज ए मल्टीपल बी प्लस सी. आप पहले ये समझिए, बाद में मैं आपको सिखाता हूँ क्या. अब डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्या होगा? सो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, दैट इज बी माइनस सी. Okay, we will have three different integers, the rational numbers a, b and c. We can say take the integers also, we can take the whole numbers also. It is okay. The first statement is a multiple sorry, okay, a multiple b plus c. Now kindly concentrate here. It is what? A multiple b plus c. इट इज़ ए मल्टीपल बी प्लस सी. नाउ अब जो सीखना है वो आगे सीखिए. सो फर्स्ट ए मल्टीपल बी होगा, तो फर्स्ट ए मल्टीपल बी होगा, राइट? फिर बीच में पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव. देन इन द सेकेंड नंबर क्या होगा? ए मल्टीपल सी होगा. सो ए मल्टीपल सी. आप ये कह सकते हो कि b है, एक बार मल्टीप्लाइड होगा वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड c भी एक बार मल्टीप्लाई होगा a के साथ. सो a मल्टीपल b आया. सो देखिए a मल्टीपल b, दे आर वेरिएबल. हम आगे सीखेंगे वेरिएबल और ये क्या है. तो a और b का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ए बी, एंड a एंड c का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ए सी. दैट मीन्स a मल्टीपल b प्लस सी, a मल्टीपल b प्लस सी इज ए बी प्लस ए सी. It is AB plus AC. Why it is plus sign? Because there is distributing over multiplication over addition. Clear? Okay. Now let's see for subtraction how it works. A multiple B minus C, we can say that it is A B minus C. So first time, the first multiplication will be done between A and B, so that is AB, and the second, so it is minus A and C, so it is AC. ए बी माइनस ए सी, ए मल्टीपल बी माइनस सी इन ब्रैकेट, इट इज़ ए बी माइ. ये आपको पॉलिनोमियल में भी बहुत हेल्प करने वाला है. इज इट ओके? सपोज मैं मान लेता हूँ, मैं उसको चेंज करता हूँ, एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई माइनस जेड. ट्राई करिए अपने खुद उसको लिखने का. देखो एक्स इंटू वाई, तो फर्स्ट एक्स इंटू वाई, देन पॉजिटिव साइन, देन एक्स इंटू जेड. हियर एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड, that is xz. It is okay? So you can write it well. Multiplication over addition, PQR. So that is PQ plus PR. So P will be distributed. That is PQ minus R. That is PQ minus PR. It is okay? How the multiplication over subtraction and how the multiplication over addition. Okay. Now let's see example. Okay. First we have done, suppose we have 4 divide 3 multiple 5 divide 7.
4 divide 3 multiple 5 divide 7 and 4 divide 3 multiple 2 divide 7. Okay, it is like that. So we want to find the answer. आंसर कैसे निकलेगा? क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में ये कि बाय यूजिंग प्रॉपर और स्विचेबल प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग स्विचेबल प्रॉपर्टी, कोई भी स्विचेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप उसका आंसर फाइंड करिए. देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में जो कॉमन था ना वो ए, तो ये सपोज मैं मान लो कि मैं इसको लिख रहा हूँ ए, फिर मल्टीपल में बी लिख रहा हूँ, तो 4/3 तो कॉमन है दोनों में, तो दोनों में जो कॉमन था उसको लिख दिया ए, एंड वो अलग से आया उसके लिख दिया था सी. तो ये क्या हो जाएगा, ए मल्टीपल बी प्लस ए मल्टीपल सी है, उसको हम क्या कहेंगे, ए बी प्लस सी. रिवर्स हो गया, पता चला ना ये स्टेटमेंट. ए इसको हमने कॉमन लिख दिया, सो दोनों में से ये कॉमन आउट हो गए. फिर क्या बचा यहाँ पे, तो बी, तो मैंने बी लिखा. फिर क्या आता था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखा. फिर क्या आता था सी, तो मैंने सी लिख दिया. इट इज़ ओके. सो क्या हुआ कि जो 4/3 था वो 4/3 बाहर निकल गया. अंदर क्या बचा, तो 5 डिवाइड 7 प्लस 2 डिवाइड 7. इट इज़ ओके. 4 डिवाइड 3 इंटू 5 डिवाइड 7 प्लस 2 डिवाइड 7. 4 डिवाइड 3, 7 7 is equal denominator, that is 7. It is 5 plus 2, 5 plus 2. It is 4 divide 3. What is 5 plus 2? 7. 7 divide 7. 4 divide 3. 7 divide 7 is 1. Your answer is 4 divide 3. How we have found the answers very easily. Okay. Now let's see another sum. 2 divide 3 into 3 divide 4 plus 2 divide 3 मल्टीपल 1 डिवाइड 2. तो देखो दोनों में कॉमन कौन है, 2 डिवाइड 3, तो 2 डिवाइड 3 दोनों में कॉमन है. सो कैन वी से दैट इज ए. सो उसको कॉमन को बाहर निकाल दिया, फिर मल्टीपल किया. अब सोचो यहाँ से मैंने इतना पोर्शन तो मैंने बाहर निकाल दिया 2 डिवाइड बाई 3 का, तो क्या बचा इधर, तो इधर सिर्फ बचा 3 डिवाइड 4. ओके, फिर कौन सी साइन आएगी, तो प्लस की साइन आ गई, राइट. यहाँ से 2 डिवाइड बाई 3 तो हमने बाहर निकाल लिया. फिर क्या बचा यहाँ पे 1 डिवाइड 2 हो गया, 1 डिवाइड 2. तो यहाँ पे क्या था 2 डिवाइड 3 मल्टीपल. अब इसका आंसर क्या होगा, देखो 4 and 2, समझो ये बार बार ये एडिशन आ रहा है. 4 and ये 2, इनका एलसीएम तो क्या निकलेगा 4. यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं है. 2 है तो 2 को मल्टीपल करने की ज़रूरत है 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीपल हुआ. तो आगे क्या बचा, तो आगे हुआ 2 डिवाइड 3, 2 डिवाइड 3, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 क्या हो गया 5, और यहाँ पे क्या था 4. अब आप 7th स्टैंडर्ड में सीख के आए हो, ये कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर क्या बचा 5, नीचे 3 2 ज़ा क्या हुआ 6. दैट इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. दैट इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो वी हैव सीन इट अबाउट एडिशन. लेट्स सी इट अबाउट सब्ट्रैक्शन. नंबर 1, समझ रहे हो ना हम क्या लिख रहे हैं. देखो ए मल्टीपल बी माइनस सी था, उसको हम लिखते थे ए बी माइनस ए सी. आपको उसका रिवर्स लिखना है कि जब ए बी माइनस ए सी हो, मतलब दोनों में कोई भी एक इरेशनल नंबर कॉमन हो, तो हम लिख सकते ए बी माइनस सी. अगर बीच में प्लस है तो हम लिख सकते हैं बी प्लस सी. हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस सी. इट इज़ ओके. नाउ लेट्स सी सेम एग्जाम्पल फॉर सब्ट्रैक्शन. 5 डिवाइड 3, 5 डिवाइड 3 मल्टीपल 3 डिवाइड 7, 5 डिवाइड 3 मल्टीपल 3 डिवाइड 7 माइनस 5 डिवाइड 3 multiple 1 divide 7. Now, what is common term in both? The common term is 5 divide 3. So, I will write 5 divide 3. अब समझो 5 divide 3 जो कॉमन था वो तो चला गया बाहर, फिर ब्रैकेट होगा. यहाँ पे ये दो नंबर थे, उसमें से 5 डिवाइड 3 कॉमन निकल गया, तो बचा क्या यहाँ पे, तो 3 डिवाइड 7 बचा, माइनस बीच में माइनस आ रहा था तो माइनस लिखा. 5 डिवाइड 3 तो कॉमन चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे, तो 1 डिवाइड 7 बचा. देखते हैं आगे. फिर 5 डिवाइड 3, 7 7 इक्वल डिनोमिनेटर, आंसर इज 7. 3 माइनस 1 कर लिया. ओके, फिर क्या होगा 5 डिवाइड 3, व्हाट इज 3 माइनस 1, 2 डिवाइड 7. अब देखो दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, 5 डिवाइड 3 एंड 2 डिवाइड 7. सो इट इज़ 5 मल्टीपल 2 एंड 3 मल्टीपल 7. न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, 5 एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन, 3 एंड 7 का मल्टीप्लीकेशन. व्हाट इज 5 2 ज़ा, that is 10, 3 7 ज़ा, that is 21. This is how distributive property works. This is how distributive property works. How we can
फाइंड द आंसर विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो अगर आपको कुछ ऐसे बोला जाए कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड द आंसर. ओके, चलो और एक सम करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, राइट. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम फाइंड कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी अनदर सम. 6 डिवाइड 7 इंटू 3 डिवाइड 4. 6 डिवाइड 7 इंटू 3 डिवाइड 4 प्लस ये खास ध्यान में रखना कि कौन सी साइन है. 6 डिवाइड 7 मल्टीपल 11 डिवाइड 4. 11 डिवाइड 4. नाउ विच इज कॉमन टर्म? Which is common term in both? That is 6 divide 7. Take 6 divide 7 out. If 6 divide 7 is out, what is remaining? 3 upon 4 plus 11 upon 4. It is okay? 3 divide 4, ये तो बाहर चला गया. Okay. 6 divide 7 plus 4 equal denominator LCM is 4. It is 3 plus 11. It is 3 plus 11. Next term. It is 6 divided by 7. What is 11 plus 3? 14. Divide 4. Cut the fraction very easily. It is 7 1s are 7, 7 2s are 14, 2 1s are 2, 2 2s are 4, and 2 3s are 6. Your answer is 3. Is it okay? Your answer is 3. So this is how distributive property works. This is all about distributive property. Okay, so you can do so many example with the help of distributive property. I am giving you some of them. Please try it by yourself and please get it cleared. Distributive property. The first one that you have to do it by yourself. 4 divided by 5 multiple 13. 13 divide 4 minus 4 divide 5 multiple 3 divide 4. So do it by yourself and you can share your answer. 7 divide 9. 7 divide 9 multiple 19 divide 5 minus 7 divide 9 multiple 4 divide 5. Multiple 4 divide 5. So please pause the video, write down the question and then share your answer. Number 3. It is 9 divided by 16 and minus 3 divide 9 plus 9 divided by 16 multiple 4 divide 12. So you can share your answer, right? Number 4. 2 divide 5 multiple 3 divide 12 plus 2 divide 5 multiple 5 divide 12. So this is all about distributive property. Okay, then we will see some basic sums and representation of rational number on number line. और रेशनल नंबर के लिए कुछ प्रॉपर्टी बाकी थी, राइट. तो वो आगे देख लेंगे. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी एंड हाउ वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टी. और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमारा एक टॉपिक बाकी था. सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसमें ये टॉपिक बाकी था कि वेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, number with its multiplicative inverse, we will get answer 1 always. Answer 1 always. And multiplicative inverse, it is called reciprocal. It is called reciprocal. ये हमने देख लिया था. तो यहाँ से दो क्वेश्चन आता है कि whose reciprocals are always same. कौन सा जो नंबर है वो नंबर एंड उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो दोनों सेम ही है. तो आंसर इज़ 1 and -1. 1 and -1 ऐसे नंबर है, वो नंबर एंड उनका रेसिप्रोकल मतलब नंबर एंड उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलवेज सिमिलर ही होता है. ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल है ही नहीं? सो योर आंसर इज 0. 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल है नहीं, राइट. So that is all about multiplicative inverse. We have completed each and every property. Do the sum, revise each and every part so you can have the idea. And the remaining topics are rational number, representation of the rational number on the number line, and some example based on properties. Thank you so very much for watching this video. Share it with your classmates, your friends, and stay connected with us. Thank you. Have a nice day.